اردو پوڈ کاسٹ کے اس تیسرے سیگمنٹ میں ہم اپنے مہمان سے سوال اور جواب کے ذریعے جو ہے ان کے افسانوں اور ان کی زندگی کے تجربات اور مشاہدات اور باقی احساسات جو ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سیگمنٹ کا جو پہلا سوال ہے تو ہم مہمان کے پس منظر کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں. تو ڈاکٹر نور الحمید صاحب، آپ کس شہر میں پیدا ہوئے اور کہاں پرورش پائی، اور ساتھ ہی آپ کا تعلیمی پس منظر کیا ہے، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بہت بہت شکریہ. یہی اہم سوال ہے. میں تمام ناظرین جاننا چاہیں گے کہ میرا کس علاقے سے تعلق ہے. ریحان بھائی، میں مہاراشٹر کی مراٹھواڑہ ادبی اعتبار سے اہم شہر پربھنی سے تعلق رکھتا ہوں. بنی کو سنتوں کی اولیا کی سرزمین کہا جاتا ہے. ادبی اعتبار سے اس کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ اورنگ آباد ولی و سراج کی سرزمین ہے. تو پربھنی قراب الحق اور سنت سائی بابا کی سرزمین ہے. میرا بھی تعلق اس زرخیز ادبی علاقے سے پربھنی سے ہے. میری تعلیم یہاں کے بہت اہم تعلیمی ادارے ڈاکٹر ذاکر حسین پرائمری اردو اسکول میں ہوئی. میرا ہائی اسکول بھی ڈاکٹر ذاکر حسین ہائی اسکول اور جونیئر کالج میں ہوا. جونیئر کالج بھی ڈاکٹر ذاکر حسین ہائی اسکول اور جونیئر کالج سے ہوا. میں نے بی اے ایم اے پربھنی سے کیا. میں نے اردو میں نیٹ کیا 4 کی. میں نے ایجوکیشن میں ایم ایڈ کیا، ایجوکیشن میں ایم فل کی، اور انتہائی اہم دانشور، شاعر اور فلمکار جانثار اختر کے فرزند جاوید اختر پر میں نے اپنی پی ایچ ڈی کا مقالہ تحریر کر کے سوامی رامناتھ تیرتھ مراٹھواڑہ یونیورسٹی ناندیڑ میں داخل کیا، اور اس مقالے پر مجھے پی ایچ ڈی تفویض کی گئی. ابھی حال ہی میں نے پاکستان سے 3 کتابیں جاوید اختر پر شائع کروائی ہے. جاوید اختر کی غزل گوئی، جاوید اختر کی نغمہ نگاری اور جاوید اختر کی نظم نگاری. یہ 3 کتابیں پاکستان سے جاوید اختر پر شائع کروائی ہیں، اور متعدد کتابیں میری شائع بھی ہوئی ہیں. میرا ادبی سفر جاری و ساری ہے. جی، بہت بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جاوید اختر صاحب پر آپ نے جو ہے مقالہ لکھا، اور پھر بعد میں ان پر 3 کتابیں جو ہیں آپ نے پاکستان سے شائع کروائی. یہ اردو ادب کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا کام ہے، اور یہ تحقیق کا ایک بہت ہی نادر نمونہ ہے اصل میں. اور وہ کتاب میں دیکھ چکا ہوں، میرے پاس ہے وہ تینوں کتابیں. اور یہ اصل میں جو ہمارے فلموں کے جو نغمہ نگار ہوتے ہیں انہیں شکایت ہوتی ہے، آخری وقت میں تو ضرور ہوتی ہے یہ شکایت، کہ وہ کامیاب نغمہ نگار ہونے کے ساتھ ادب میں ان کو وہ مقام حاصل نہیں ہوتا، خاص طور سے اردو ادب میں. لیکن آپ نے جاوید اختر پر جو کام کیا ہے وہ واقع میں قابل تعریف ہے، اور یہ فخر کا مقام ہے. اور ساتھ میں آپ کے اوپر پاکستان میں ایم فل ہونا، ایم فل کا مقالوں کا موضوع بننا، یہ کامیابی کی نشانی ہے. تو اس عمدہ اور ادبی سرمایہ کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بطور خاص جس وقت محفل افسانہ منعقد ہوتا تو ہم ان محفلوں میں رہتے اور سنتے. بہت اہم افسانہ نگاروں کو ان محفلوں میں ہم نے سنا، لیکن شجاع کامل کو جب افسانہ پڑھتے سنتے تو لگتا تھا کہ ہم بھی جیسا کچھ ہم کو بھی لکھنا چاہیے، انہی کی طرح نقالی کرتے ہوئے افسانے کو پڑھنا چاہیے. ان کے افسانے جیسے ہوتے ہیں ویسے افسانے لکھنے چاہیے. تو میرے محرک تو ڈاکٹر شجاع کامل ہی رہے ہیں، اور محفلوں میں جن بڑے افسانہ نگاروں کو میں سنتا تھا وہ بھی سارے محرک رہے ہیں. لیکن زیادہ تر شجاع کامل صاحب کو جب ہم افسانہ پڑھتے ہوئے سنتے تھے تو جی چاہتا تھا کہ ان کی طرح افسانے لکھیں. طالب علمی کے زمانے میں جب میں 8م جماعت میں تھا، 8th اسٹینڈرڈ میں تھا، تو میری پہلی کہانی
यहाँ के औरंगाबाद के एक मकामी अखबार में शाये हुई थी। तो बड़ी खुशी हुई मुझे वो कहानी जिस वक़्त मोहम्मद अब्दुल समी साहब निदाए एडिटर निदाए परभनी जब वो मेरे पास वो अखबार लेकर आए, तो अब आप तो समझ सकते हैं कि वो उस वक़्त अखबार में कोई तख़लीक़ और बतौर कहानीकार अगर आपका नाम आ जाए, तो कितनी बड़ी बात होती थी। तो अब वो जब अखबार लेकर आए, तो मुझे वो अखबार दिया, तो मेरी अजीब कैफ़ियत थी। अब वो कैफ़ियत को रेहान भाई मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, सिर्फ़ नाज़रीन और आप महसूस करिए कि एक लड़का जिसकी कहानी शाये हुई है बड़े-बड़े फ़नकारों के साथ, तो मेरा भी नाम आया है और मुझे ये इत्तला मोहम्मद अब्दुल समी साहब एडिटर निदाए परभनी दे रहे हैं। वो आए, शाबाशी दी, बहुत सारी तारीफ़ें की, बहुत अच्छा लिखा, तो मैं बहुत खुश हुआ था। मेरी वो पहली कहानी अक्लमंद किसान औरंगाबाद टाइम्स में 1990 में छपी, मैं बहुत खुश था। वो मेरा पहली फ़िक्शन का ये पहला कदम था और इब्तिदा थी। बेशक जो पहली हमारी तख्लीक जब शाये होती है, तो उसकी जो खुशी है, वो एक तरह से देखा जाए तो पहली मोहब्बत की तरह होती है और वो हमेशा याद रहती है। और अगर उस वक़्त हमारे आस-पास के लोग अगर हौसला मज़बूत तरीके से अगर हमारा हौसला बढ़ाते हैं, तो हम लंबा सफ़र तय कर सकते हैं और वैसा ही आपके साथ हुआ। अब जो तीसरा सवाल जो है कि आपके जो अफ़साने हैं, मैंने देखा है कि आपके अफ़सानों में जो मौज़ूआत होते हैं और चाहे वो मियाँ-बीवी का हो, तो मियाँ-बीवी के जो मौज़ूआत होते हैं, वो आम घरेलू मौज़ूआत पर जो अफ़साने लिखे जाते हैं, उस तरीके के मैंने कभी नहीं देखा। आप मुश्किल मुश्किल मौज़ू चुनते हैं और चाहे और भी जो जैसे अभी आपने जो अफ़सानचा सुनाया बिड़ू, तो वो एक्चुअली देखा जाए तो मियाँ-बीवी की वो छोटी-सी एक कहानी है, लेकिन बहुत ही डिफरेंट जो ज़ाविये से आपने उसे बरता है। तो बहरहाल अब आप जो अपने मौज़ूआत को जो आपको कौन से मौज़ूआत ज़्यादा मुतासिर करते हैं और किस किस्म के किरदार और हालात आपके अफ़सानों में ज़्यादातर नज़र आते हैं, उस ताल्लुक से जो है वो हमारे क़ारीन को बताएँ, हमारे नाज़रीन को। रेहान भाई, मौज़ूआत तो देखिए कि अगर आदमी अपनी आँखें, अपने महसूसात और जज़्बात को हादिसात के साथ अगर रिलेट करता है, तो मौज़ूआत के लिए बहुत दूर का सफ़र करना नहीं पड़ता। से अपने करीब भी बहुत सारे मौज़ूआत नज़र आ जाते हैं। रही बात मेरे मौज़ूआत की, तो मुझे लगता है कि 2 रिश्तों के दरमियान या रिश्तों के दरमियान जो केमिस्ट्री होती है, अगर वो कहीं छूट जाती है, तो इस हादिसे को बतौर अफ़साना पेश करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम है। बाज़ दफ़ा रिश्तों में बहुत नाज़ुक-नाज़ुक मोड़ आ जाते हैं, जो बयान होने से रह जाते हैं, जो समझने से रह जाते हैं, जो जो वोकल नहीं होते, कभी वक़्त वो एड्रेस नहीं होते, कभी वक़्त वो फ्लैश नहीं होते, पता नहीं कहाँ दब के रह जाते हैं, ज़िम्मेदारियों के नीचे दब के रह जाते हैं, लापरवाही के दरमियान रह जाते हैं या कभी वक़्त बेतवज्जी के मलबे में दब जाते हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं उन लम्हात को, उन मौकों को, मोड़ों को अपने अफ़सानों के ज़रिए ढूँढ के लाता हूँ और अपने क़ारी के रूबरू पेश करता हूँ, इसलिए कि वो समझें, महसूस करें और उससे रिलेट करें कि मैंने क्या कहने की कोशिश की है। अगर उनसे भी कोई ऐसा लम्हा जो छूट रहा है, जो छूट गया है, तो वो उस लम्हे को पकड़ लें। तो मैंने ये जाना कि आप अक्सर जो है ऐसे कॉम्प्लेक्स मौज़ूआत कुछ होते हैं कि जिसको छूने के लिए लोग डरते हैं। मतलब सीधा-सीधा जो प्लॉट रहता है, तो उसपे अफ़साने जल्दी लिखाए जाते हैं और बहुत आसानी से लिख सकता है कोई भी। लेकिन आपके मैंने जो मौज़ूआत देखा है, तो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहरहाल आप अपने तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप
कौन से मौज़ूआत आपको ज़्यादा मुतासिर करते हैं और किस किस्म के किरदार और हालात आपके अफ़सानों में आपको नज़र आते हैं? रियान भाई, वैसे ख़लमकार अपने आप को किसी एक मौज़ू से या किसी एक किरदार या प्लॉट से बाँध ले, तो समझिए कि उसके मुशाहिदे, महसूसात, जज़्बात और उसके कम्युनिकेशन में थोड़ा-सा गैप है या कमी है। लेकिन हर क़लमकार का जो फ़िक्शन राइटर होता है, उसका एक अपना इंटरेस्ट होता है। जैसे आप देखिए, मंटो का एक इंटरेस्ट था, बेदी का एक इंटरेस्ट था, प्रेमचंद का एक इंटरेस्ट था। आप कह सकते हैं कि हर क़लमकार का एक इंटरेस्ट होता है, लेकिन हर क़लमकार को वर्सटाइल होना चाहिए। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैंने रिश्तों पर बहुत ज़्यादा लिखा है। अभी आप देखिए, जो अफ़साना आपने सुना, ये मौसम बदला ही नहीं, ये उस केमिस्ट्री का अफ़साना है जो मियाँ बीवी के दरमियान होनी चाहिए, या वो अंडरस्टैंडिंग जो कहीं रह गई है, छूट गई है, प्रायोरिटीज़ में नहीं आई है। कि ऐसे जो रिश्ते जो प्रायोरिटीज़ में छूट जाते हैं, अव्वलियत में रह जाते हैं, इन अफ़सानों पर बहुत सारी बातें हो सकती है और मैं समझता हूँ कि मैंने की भी हैं। जी। जैसे तख्लीक जब अफ़साना तख्लीक करता है कोई, तो उसके अलग-अलग लोगों के तरीके रहते हैं। कोई पहले मौज़ू चुनता है, कोई पहले किसी के ज़हन में प्लॉट आ जाता है, किसी के ज़हन में इख्तिताम भी आ जाता है। और आजकल अफ़सानचे जो लिख रहे हैं, उनके ज़हन में पंच लाइन पहले आ जाती है। तो इसका तो उसका जो हाल जो होता है, वो तो आप बेहतर जानते हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ कि पंच लाइन किसी के ज़हन में पहले आ जाए और फिर उसके बाद वो अफ़सानचा लिखे, या अफ़साने का जो नुक्ता उरूज जो है, वो किसी के ज़हन में पहले आ जाए, या उसके इख्तिताम का पहला आखिरी पैराग्राफ पहले ही लिख ले वो, और बाद में उसको बाकी अफ़साने का उसको जो है वो कुर्ता पैजामा, टोपी बिनाते रहे, तो फिर वो बहुत गड़बड़ होती है। बहरहाल आपका जो हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ख़ास वक़्त या माहौल होता है जब आप लिखते हैं, और आपके अफ़साना लिखने का जो तरीक़ाकार है, वो क्या है? असल में देखिए, कोई भी वाक़या कहानी या अफ़साने के लिए थीम फराहम करता है। अब थीम का मामला तो ये है कि जैसे अगर फूल के सीने पर अगर कोई शबनम गिरती है, तो उससे जो मौसीक़ी पैदा होती है, उस मौसीक़ी को जो क़लमकार सुन लेता है, वो उसका थीम होता है। किसी वाक़ये को जी। कोई वाक़या अगर उसके ज़हन में इर्तियाश पैदा करे, थोड़ी-सी हलचल पैदा करे, तो मैं समझता हूँ कि अफ़साना बनता है, कहानी बनती है और नॉवेल और दास्तान लिखी जा सकती है। तो कोई भी वाक़या आप जिसको जिसको इंटेंसिटी के साथ महसूस करते हैं, वो आपका थीम हो जाता है। फिर उसका एक्सपेंशन, उसकी तौसीह, उसका प्लॉट है, फिर किरदार भी आते रहते हैं। अब ये तो देखिए कि जो दिल लगाने का फ़न जानते हैं, वो तरकीब-वरकीब सब जानते हैं कि अपने वाह, वाह, वाह! मुद्दे को, अपने मुद्दा को कैसे, किन किरदारों के ज़रिए, किस पस मंज़र के साथ, किस माहौल में नैरेट करना है, अपनी ख़ारी तक किस तरह से पहुँचाना है, आपके जज़्बात, एहसासात को, वो तो अफ़साना निगार खुद तय करता है और ये मश्क का काम है। जितनी मश्क आपकी होगी, उतनी फ्लुएंसी, उतना टेंडरनेस, उतनी फ़साहत, बलागत और जो है सो लफ्ज़ों के पस पस मंज़र में लफ्ज़ों के ज़रिए मंज़रों को उभारते हुए आदमी अफ़साना लिखता है या कहानी गढ़ता है। बहुत ज़रूरी है आदमी का उसके मुशाहिदात, उसके जज़्बात, उसके एहसासात का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना। जैसे मैंने कहा कि वो शख़्स जिसको फूल के सीने पर गिरी हुई शबनम की मौसीक़ी समझ में आती है, वो कहानी लिख सकता है। वो उसकी जो इंटेंसिटी है जज़्बात की, अगर वाक़ये को देखने के बाद अगर उसमें जागती है, वो इर्तियाश पैदा होता है। जैसे एक कंकर ठहरे हुए पानी पर अगर कोई कंकर फेंक दे, तो वो जो लहरें बनती है, वो लहरों का नशे व फ़राज़
आदमी से कहानी लिखवाता है, और फनकार का बहुत ज़्यादा हसास होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेहतरीन जितनी भी कहानियाँ हैं, जिन-जिन कलमकारों ने जितने बड़े कलमकारों ने लिखी है, आप महसूस करेंगे कि उसमें वो जो समीम क़ल्ब है, वो आपको नज़र आता है, वो इंटेंसिटी आपको नज़र आती है, उनकी निगारिशात में भी और अपने मुद्दा को पहुँचाने में भी अपने क़ारी तक वो कलमकार अफ़साना निगार में नज़र आती है। बहुत अच्छी बात नूरुल हसनैन साहब ने मेरे इब्तिदाई ज़माने में मुझसे कही थी। उन्होंने कहा था, देखो जब भी कोई भी थीम या मौज़ू या कोई हादसा समझ में आए कि तुम्हें इस पर जैसे अफ़साना या कहानी लिखना है, तो फ़ौरन कागज़ कलम लेके नहीं बैठ जाना। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि वो जो थीम है, वो जो मौज़ू है, उसको कम से कम अपने दिमाग में 2, 4, 5 दिन पकने दो। तुम उसके साथ गौर व फ़िक्र करते रहो कि ये ऐसा होना चाहिए क्या? ये ऐसा होना चाहिए क्या? ये इस तरह से लिखा जाना चाहिए क्या? उसमें ये किरदार होना चाहिए क्या? ये किरदारों के साथ बहुत ज़रूरी है क्या? ये गैर ज़रूरी किरदार है क्या? ये अहम किरदार है क्या? कोई किरदार हमसे छूट रहा है क्या? कोई ऐसा लफ्ज़ जो पूरे अफ़साने को ख़राब कर रहा है, वो आ रहा है क्या? या कोई ऐसा लफ्ज़ जो पूरे अफ़साने की शिद्दत को, वहदत तासीर को जैसे मजरूह कर रहा है या छोड़ दे रहा है, वो आपसे छूट तो नहीं रहा है। आज भी मैं उनके मशवरे पे काम करता हूँ। मैं कोई भी थीम पर, किसी मौज़ू पर लिखना है, तो पहले 2, 4, 5 दिन अपने वक़्त के एतबार से उसको अपने ज़हन में रखता हूँ। उसकी जब फ़सल तैयार होती है, तो उसे कागज़ के सुपुर्द करता हूँ, अपने क़ारी के लिए। जी, तो कौन से अफ़साना, ये कौन से मुसन्निफ़ीन हैं जो आपको मुतासिर करते हैं, और उनकी कौन-सी किताबें या अफ़साने जो है आपको पसंद है? थोड़ा-सा अपनी पसंद के बारे में जो है बताइए। तो देखिए, सारे जो अफ़साना निगार हैं, तरक्की पसंद अफ़साना निगार हैं, उनकी सारी अफ़सानवी मजमूए मुझे बहुत पसंद है, उनकी कहानियाँ पसंद हैं। गर्ज़ के मुझे सारे तरक्की पसंद अफ़साना निगार बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अगर 1-2 नाम लूँगा तो जैसो ज़्यादती होगी, लेकिन जितने तरक्की पसंद अफ़साना निगार हैं, मैं सभी को पढ़ता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा आप इसरार करेंगे तो मुझे मंटो, बैदी, कृष्णचंद बहुत अच्छे लगते हैं। अहमद अली बहुत अच्छे हैं। अपने तालिब-ए-इल्मी के ज़माने में मैंने रतन लाल को भी बहुत पढ़ा है। मेरा मेरा जो मानना है कि अफ़साने जो है वो तफ़रीह के लिए या मनोरंजन के लिए ना लिखे जाएँ। उसमें माशरती मसाइल की झलक मिलनी चाहिए। तो आपकी तहरीरों में माशरती मसाइल की झलक कितनी है, आपके हिसाब से? और क्या आपने कभी किसी ख़ास मसले पर, ख़ास मसला जो हमारे माशरे का है, उस पर कभी आपने अफ़साना लिखा है क्या? तो उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, जो भी कलमकार अफ़साने लिखता है, उसका पहला मौज़ू तो मोहब्बत ही है, रोमांस है या रोमानी अफ़साना है। जी। मोहब्बत समाजी मसला भी है, ज़ाती मसला भी है, इनफ़रादी मसला भी है। तो मैंने रोमानी अफ़साने भी लिखे हैं। मेरे अफ़सानवी मजमूए का नाम बंद आँखों के सपने, ये रोमानी अफ़साना है। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो महसूस करेंगे कि मोहब्बत किसी जिस्म के किसी उज़्व की मोहताज नहीं होती, वो सिर्फ़ दिलों तक का ताल्लुक़ को इज़हार करने का नाम मोहब्बत है। तो मैंने लिखा है। बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिनको मैंने अपनी अफ़सानों के, कहानियों के मौज़ू बनाए हैं। रुश्वत भी उसमें से एक जैसो इंतहाई बर्निंग टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक है, जिसने माशरे को बुरी तरह से जोड़ के रखा है। ऊँच-नीच के फ़र्क में जो आज इज़ाफ़ा हुआ है, उसे करप्शन ने, रुश्वत ने बहुत ज़्यादा उसकी खाई को बाँट दिया है। जो तबक़ाती या जैसे समाजी जो ताना-बाना है, दौलत के एतबार से उसको भी मैंने उसको भी मैंने एड्रेस किया है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे मौज़ूआत पे लिखे हैं।
लेकिन जैसे एक मेरा अफसाना है, देखिए, बुद्धा फिर मुस्कुरा ले, वो इलाहाबाद के जो फैसला है आस्था के नाम पर, उसको मैंने जी जी एक बहुत अजीब तरह से लिखा। मुझे लगता था कि मेरी कोई सलाहियत नहीं है, लेकिन चूंकि एक तारीखी वाकया था इलाहाबाद की हाई कोर्ट का, वो किसी फनकार को अपनी अदबी तारीख में जब्त करना चाहिए। तो अल्लाह ने मुझसे लिखवाया और वो जब्त हो गया है। क्योंकि अब आप तो जानते हैं कि अदीब के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं होता कि वो बहुत लाउड हो जाए, लेकिन मैंने थोड़ा सा अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की है। एक अलग तरह की क्राफ्ट है बुद्धा फिर मुस्कुराले में, जो मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में जब भी नक्काद 21वीं सदी के अफसाने पर कोई गुफ्तगू करेगा, तो बुद्धा फिर मुस्कुराले को बहुत अहमियत के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेगा, क्योंकि इसकी क्राफ्ट, कहानी और अफसाने का खूबसूरत इम्तिजाज है। और देखिए, कोई भी फन पारा वो फन पारा तो होता ही है, अदब में उसकी अपनी अहमियत होती है, लेकिन कोई वो फन पारा जो जो फर्द और समाज से ताल्लुक रखता है, एक पूरी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, वो तारीख का हिस्सा भी होता है। बहुत सारी जगह तारीख अपने आप को बेबस महसूस करती है, तो अदब उसे सहारा देता है। अदब उसको वो मजबूत ताकत अता करती है कि जिसके सहारे वो अपनी आवाज को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाती है, तो उसका दायरा बहुत वसी होता है। जी, वाकई में वो जो अफसाना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें जो आपने मसला उठाया है, वो इस सदी का चंद बड़े मसाइल में से एक मसला है वो। और उसका बहुत बड़ा जो माशरती, सियासी, समाजी उस पे असर हुआ है। तो ये तो हुआ मसला जो है आपने अफसानों के जरिए उठाया। मैं तो अफसानों को एक टूल की तरह, एक औजार की तरह लेता हूँ, अफसानचों को या अफसानों को। तो आप जो है अपने अफसानों के जरिए किस किस्म का जो असर आप अपने अफसानों से डालना चाहते हैं, या आप किस तरह की मैसेजिंग देना चाहते हैं, या कभी इस तरीके से होता है कि खास पैगाम की रसाई के लिए, खास कोई पैगाम देने के लिए आपने जो है अफसाने या अफसानचे लिखे हैं? तो इस ताल्लुक से थोड़ा सा बताइए। रियान भाई, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक मुख्तसर बात ये कि एक मेरा अफसाना है, एक छोटा सा दायरा। जी जी इस अफसाने में बीवी अपने शौहर को इसरार करती है कि तुम दूसरी शादी कर लो। जी अब देखिए, औरत की फितरत ये है कि औरत अपने मर्द की जिंदगी में अपने अलावा किसी दूसरी औरत को दाखिल होने नहीं देना चाहती। वो लड़ती है, मर जाती है, कट जाती है, अपने आप को यहाँ तक कि वो फना कर देती है और हद से गुजर जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो इस अफसाने में ये इसरार कर रही है कि तुम दूसरी शादी कर लो। आप देखिए क्या मैसेजिंग है, क्या उस औरत पर गुजर रही होगी जब वो ये कह रही है कि तुम दूसरी शादी कर लो। न सिर्फ दूसरी शादी कर लो, बल्कि उसने अपने शौहर के लिए बीवी भी तलाश कर ली है जिससे उसको शादी करनी है। तो इसकी वजह जी ये है कि दोनों मियाँ बीवी, हालांकि उनके बच्चे हैं, लेकिन वो सारे बच्चे जो सो अपनी अपनी बीवियों के साथ पढ़ लिख कर, तरक्की कर कर दूसरे मुल्कों में सेटल हो गए हैं। बेटी अपने जो सो ससुराल जा चुकी है और मियाँ बीवी दोनों शहरी जिंदगी गुजार रहे हैं फ्लैट। और सबसे बड़ी चीज है, दुनिया जहाँ की तमाम आसाइशें, आराम जो सो मैसर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हजारों, लाखों, करोड़ों की भीड़ के दरमियान दो लोग अपने आप को शिद्दत से तन्हा महसूस करते हैं, और इसी तन्हाई को दूर करने के लिए किसी तीसरे शख्स को
وہ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। और आप देखिए कि तन्हाई जो कि खामोश है, लेकिन फिर भी इतना ज़ोरदार धमाका करती है कि आदमी का वजूद लरज़ जाता है कि आदमी कितना ये तो कमज़ोर हो गया है कि उसको इंसानी ज़िंदगी, इंसानी सोहबतें कितनी ज़रूरी है। मैं समझता हूँ हवा, पानी, ग़िज़ा, बिजली, मोबाइल के साथ-साथ आदमी को बात करने के लिए आदमी की भी ज़रूरत होती है, शोर-ओ-गुल की भी ज़रूरत होती है। उसकी ज़िंदगी की के जो खट्टे-मीठे ज़ायक़े हैं, उन ज़ायक़ों को चखना भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एक तरह की ज़िंदगी, मुसत्ता ज़िंदगी हो, तो वो उससे ऊब जाता है। इसलिए ज़िंदगी का हर दिन उसके लिए नया दिन होता है, चैलेंजिंग दिन होता है। उसके लिए आप देखिए कि उसके लिए जीने की रेमेडीज़ होता है, दवा होता है, ग़िज़ा होती है। तो मैंने इस जैसो एक छोटे से दायरे में तन्हाई को एड्रेस करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि बड़े शहरों में, पढ़े-लिखे घरों में ये मसला बहुत अहम है। हद तो ये है कि तदफ़ीन के लिए बड़े शहरों में चौथा आदमी नहीं मिलता। हमको बाहर से किराए पर आदमी लाना पड़ता है। मरीज़ की देखभाल के लिए हमको रात में 1000 रुपये एक रात देकर अपने माँ-बाप की ये सो तीमारदारी के लिए किराए पर आदमी लेना पड़ता है। हम किस दौर में दाखिल हो गए हैं, ये अफ़साना बहुत कुछ चीज़ों पर रोशनी डालता है। अगला सवाल है कि कौन-सी गलतियाँ नए लिखने वाले अक्सर करते हैं और उनसे किस तरह बचा जाए? और आप नए अफ़साना निगारों को क्या मशवरा देना चाहते हैं? देखिए बहुत मुश्किल है नई नस्ल को ये समझाना कि कहने से ज़्यादा सुनना ज़रूरी है, लिखने से ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है। शोहरतों की भूख ने इंसान को बड़ा उजलत पसंद कर दिया है। यकीनन शोहरत की भूख तो होनी चाहिए, लेकिन एतदाल के साथ अगर हो तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बेहतर है। नए लिखने वालों बड़ी डिजिटल दौर की नस्ल है, एंड्रॉइड की नस्ल है। ये खुद से समझना चाहती है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा अपने तजुर्बे के एतबार से कि आप अगर किसी ख़याल को कागज़ पर उतारना चाहते हैं, तो इसके लिए एक वास्ता होना चाहिए। वो वास्ता आपकी जो इस्तेदाद है लफ्ज़ों की, अगर उसकी बैसाखियाँ, उसकी पटरियाँ अगर नहीं होंगी, तो आप कितना गहरा आपके जो महसूसात हों, ख़याल हों, तब भी आप उसको कागज़ पर नहीं उतार सकते। तो आपको अपने अल्फाज़ की काबिलियत को बढ़ाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, वरना कशमकश की जगह आप किशमिश लिख देंगे और बहुत फ़साद हो जाएगा। कौन सा लफ्ज़ कहाँ किस मंज़र में आपको इस्तेमाल करना है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आपको ये ताकत, ये महारत, ये एबिलिटी आपको हासिल करनी पड़ेगी, तो इसके लिए मुताला बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कहते हैं कि आपको शेर कहना है, अफ़साना जैसो लिखना है, तो इसके लिए आपका मुशाहिदा गहरा होना चाहिए। किसी भी जो अफ़साना निगार से छोटी से छोटी चीज़ भी उसकी नज़रों से बचनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो चेहरों के पीछे चेहरे देखने का अगर फ़न किसी फ़नकार को या अफ़साना निगार को आता है, तो मैं समझता हूँ कि वो अपने महसूसात, जज़्बात, एहसासात को बहुत बेहतर तरीके से शेर की सूरत में, अफ़साने की सूरत में, अफ़सानचे की सूरत में, कहानी की सूरत में लिख सकता है। यही एक बात है कि पढ़ना चाहिए, मश्क करना चाहिए और अपने बड़ों की बात सुनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो हमारी तरबियत गाहें थी, जो महफ़िलें थी, जो बुज़ुर्गों की सोहबतें थी, आज वो सोहबतें हमारी नई नस्ल को मयस्सर नहीं है। रेहान भाई, मैं और आप बहुत खुशनसीब लोग हैं और मैं समझता हूँ कि ये नस्ल वो आखिरी नस्ल है जिसे अपने बुजुर्गों की सोहबतें नसीब हुई, उनकी गुफ्तगू सुनने की जैसो हमें
सादत हासिल हुई, वो उनकी गुफ्तगू का तबर्रुक आज भी हमारी समातों से टकराता है। हमारी नई नस्ल को ये कोशिश भी करनी चाहिए, सोबत साले साले कुनत, कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज, क्योंकि अगर कबूतर बाज के साथ उड़ने की कोशिश करेगा तो वो बाज की ऊंचाई तक नहीं पहुंचेगा, और अगर बाज के साथ उड़ने की कोशिश करेगा तो बाज बाज में रहकर भी बहुत ऊंचा उड़ सकता है। सोबतें इख्तियार करनी चाहिए, मुशाहिदा अच्छा रखना चाहिए, मुताला अच्छा रखना चाहिए। बहुत सारा पढ़ने से काम नहीं चलता, आपके मतलब और माना का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी मंजिल के लिए क्या चाहिए, इसका इल्म भी होना चाहिए, क्योंकि आदमी जंग में जब जाता है तो किस चीज़ से जंग लड़ता है, उसका उसका असला, उसका असबाब उसके साथ होना चाहिए। जी, बहुत अच्छा और बहुत ही काम का जो है आपने पैगाम दिया है नए लिखने वालों को। अब उन्हें इस पर अमल करना चाहिए। तो क्या आपकी किसी नई किताब के या किसी अफसानवी मजमूए पर आपका काम अभी फिलहाल जारी है, उसके ताल्लुक से बताइए, और आपके आइंदा जो मंसूबे हैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। रेहान भाई, असल में एक अफसानों का मजमुआ अभी आ रहा है इंशाल्लाह। जी लेकिन मैं अभी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ जो मुझे स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने दिया है, मराठवाड़ा में उर्दू अदब परभनी जिले के हवाले से। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करिए कि जी ये काम जो है सो अच्छे से हो जाए। एक नावल का भी मंसूबा है, बहुत अच्छा नावल है। आप नावल आ जाएगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो नावल नुदूरत मौजू, नुदूरत निगारिश की वजह से बहुत अहम है। लेकिन चूंकि अभी मैं तहकीक पर में मसरूफ हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा नावल को अभी नहीं ले रहा हूँ। इंशाल्लाह एक महीने साल भर में शायद मैं नावल की तरफ आऊँ, और मैं जब नावल लिखूंगा तो तब मैं दूसरे कोई काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ नावल मुकम्मल करूंगा। जी, आपके अफसाने, जैसे मैं तो देखा हूँ कि आप बहुत कम शाये करवाते हैं, फिर भी आपके अफसाने कहाँ कहाँ शाये हुए हैं, और आपका जो अफसानी मजमुआ था उसके अशात के दौरान अगर कोई मसाइल दरपेश आए हो तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। रेहान भाई, देखिए कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली लिख के पढ़ी जाती है, अफसाने तो वहाँ छपे हैं। बहुत सारे रसायल हैं जी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जिनमें मैं छप चुका हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, देखिए अब ये मसला ये है कि 2012 में जब बंद आँखों के सपने मैंने शाये करने का मंसूबा बनाया, तो उस वक्त कंप्यूटर अपनी इब्तिदाई जैसे सूरत हाल में था, और पब्लिशिंग का मामला बहुत खाल खाल था, और यहाँ होता भी नहीं था, परभनी में नहीं होता था बिलखुसूस, क्योंकि यहाँ जी ओलिथो और उस पर काम होता था एंशियंट और कदीम तर्ज पर। तो उस वक्त बहुत सारी मुश्किलें आई, और कंप्यूटर से टाइप करवा कर अफसानवी मजमुआ छपवाने की ख्वाहिश थी, तो कोशिश को किशमिश कर देता था, मर्द को नामर्द कर देता था। तो असल में एक ये है कि एक अफसानवी मजमुए के लिए मैंने जो प्रूफ रीडिंग की वो 4 से 5 की, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक अफसानवी मजमुआ नहीं शाये किया, 5-6 अफसानवी मजमुए मैंने शाये करवाए। जी तो इस तरह की थी, जी लेकिन चूंकि वो एक जुनून होता है, अब ये तो वही करे जिसे बेइंतहा इश्क हो, या फिर वही करे जो दीवाना हो। जी अब थोड़ा सा ऐसा सवाल कि थोड़ा सा वो सवाल कम आईना ज्यादा है कि जब आपके अफसानों पर तनकीद की जाती है तो आपका क्या रद्द अमल होता है? क्या आप तनकीद को अपने काम में बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि रेहान भाई देखिए, मैं एक अफसाना निगार से ही सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बहुत ही अच्छे, मतलब तनकीद निगार बोलना चाहिए, नक्काद बोलना चाहिए,
मैं उससे भी बात कर रहा हूँ कि कुछ ऑलराउंडर होते हैं, अफसाना निगारी भी अच्छी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वो नक्दो नजर भी उनकी आपकी बड़ी ही खूब होती है। तो इस ताल्लुक से आपका रद्द अमल क्या होता है, बताइए। रेहान भाई देखिए, मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जहाँ दुनिया को किसी के लिए वक्त नहीं है, अगर कोई आदमी आपका फनपारा पढ़कर अगर कुछ कहता भी है, अगर आपके कही हुई बात को उसके फहम तक उसका तजुर्बा उस तक रसाई नहीं भी करता है, तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे खुशी होती है। मुझे खुशी इस बात की होती है कि इस भागती दौड़ती दुनिया में कम से कम एक बंदा तो है जिसने मेरा फनपारा पढ़ा है। मैंने कहा मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि उसने कम से कम पढ़ तो लिया है, और अगर मुझे कोई बात नागवार भी गुजरती है तो मैं ये समझता हूँ कि उसने यार मेरा फनपारा पढ़ा तो है ना, मुझे खारी तो मैसर हुआ है। अच्छा, फिर ये भी है कि कोई आप देखिए रास्ते से चलने वाले आदमी को आप डांटते नहीं है, घर में अपने अपनों को डांटते हैं। तो अगर कोई ऐसी बात सख्ती की बात, जैसे बाप का प्यार होता है, वो अगर कतर के करता है लेकिन प्यार तो है ना। सही। तो वो जो मेरा खारी है, अगर ये उसका फहम वहां तक नहीं पहुंचता है या वो कुछ सख्त चुस्त कह भी देता है, तो जो अदब का माहौल हो गया है, इस अदब के माहौल में यकीन जानिए, मैं इसलिए नहीं कि मैं कैमरे के सामने हूँ, मैं यकीन जानिए आप इस बात के गवाह भी हैं कि मेरी आपकी जब निजी गुफ्तगू होती है तो मैं हमेशा इस बात का कायल रहता हूँ कि चलिए छोड़िए, हमको लोग जोड़ने हैं, लोग तोड़ने नहीं हैं, हमको इजाफा करना है। अगर ये लोग हमारे कारवां में शामिल नहीं होंगे तो हमको दोहराने वाला, हमको याद करने वाला, हमारी बात करने वाला कौन रहेगा। इसलिए मैं समझता हूँ उसकी नागवारी इतनी बड़ी कीमत है। मुझे लगता है कि ये सौदा कोई बुरा सौदा नहीं है। एक अच्छा खारी आपको मिलता है, एक नाक़िद आपको मिलता है, वो आपकी बात करता है, जितनी उसको चिड़चिड़ाहट होती है उतने ही आप मुश्तहिर होते हैं, उतने ही आप पॉपुलर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि खैर जो भी दर्जे में हो, इज्जत और जिल्लत का देने वाला तो अल्लाह है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जहाँ किसी के पास कोई वक्त नहीं है, अगर कोई शख्स तनकीद भी करता है, सुख्त चुस्त दुरुस्त तनकीद भी करता है, नागवार तनकीद भी करता है, तो मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए माले गनीमत है, वो नियामत है, क्योंकि मुझे एक खारी नसीब हुआ, उसने मेरे फनपारे को पढ़ा तो है, मुकम्मल पढ़ा तो है। अब ये तो होता रहता है, किसी को समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आता है, और वाकई ये भी होता है कि कभी वक्त फनकार से भी कुछ बातें छूट जाती है, रह जाती है, वो बयान नहीं होती है। तो अगर उसकी तरफ भी निशानदेही करता है तो मैं ज़ाती तौर पे इसको बहुत पॉजिटिव लेता हूँ। मैंने कभी किसी से कभी ऐसा कोई शाखसाना नहीं रहा तनकीद की वजह से कि लोग मुझसे नाराज हो जाएं, या मैंने किसी ने मुझ पर तनकीद की तो मेरे रिश्ते उस नकात से, उस मुबस्सिर से कभी कशीदा हुए हों। मैं इसको तो बहुत पॉजिटिव लेता हूँ। और लोग पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक मर्तबा जब पब्लिक डोमेन में आपका फनपारा आता है तो वो मोम की गुड़िया होता है, जिसकी जो मर्जी चाहे तो वो वैसे उसको देखता है, उसको उस तरह से ट्रीट करता है। लेकिन बहरहाल दुनिया है, हर आदमी का तजुर्बा, उसका मुशाहिदा, उसके महसूसात, उसका इल्म, उसका पस मंजर, उसका तजुर्बा जुदा जुदा होता है। हर आदमी अपने लिहाज से, अपने तजुर्बे के लिहाज से कुछ ना कुछ तो बोलेगा। खैर मेरा तो मानना यह है कि मैं इस नुक्ते से देखता हूँ कि मेरी जो निगारिश है, मेरा फनपारा उस तक पहुंच गया है, मुझे कभी नागवार गुजरता नहीं, और अल्लाह गवाह है इस बात का। मैं सिर्फ कैमरे के रूबरू हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ रेहान भाई, यकीनन मुझे बुरा नहीं लगता है, मैं बहुत पॉजिटिव लेता हूँ, इसलिए कि मुझे एक खारी मिल गया, एक नकात मिल गया। जी जी। और सोशल मीडिया पे आप अपने तबलीगात जो है वो शेयर करते हैं उस ताल्लुक से, या अपने जो क़ारीन हैं आप किस तरह कंटेंट बनाते हैं या राब्ता कायम करते हैं? यूनिवर्सिटी की मसरूफियत की वजह से मैं
अफसानों या फिक्शन की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, इसलिए मैं सोशल मीडिया पर अपनी तख्लीक़ात पोस्ट नहीं करता। अलबत्ता ये है कि कुछ अफसानचे और अफसानों के ग्रुप हैं, वहाँ पर मैं अपने इज़हार ख़याल भी करता हूँ फ़नकारों पर, और कभी मौका मिला तो अपने अफसाने भी वहाँ पर जो है सो अपने क़ारीन के लिए शेयर करता हूँ। जी, जी। आपकी ज़िंदगी के अहम जो लम्हात हैं, कोई ख़ास वाक़या जो आपके अफ़सानों के की तख्लीक में मददगार साबित हुआ हो, या कोई ख़ास याद जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो, जो आपने अफ़साने में बयान की हो या आपने अफ़सानचे में बयान की हो, तो उस ताल्लुक से कोई अगर वाक़या हो तो वो आप शेयर कीजिए। देखिए, आदमी की शख्सियत पर या उसकी तरबियत पर, ज़हन साज़ी पर उसके करीबी रिश्तों का बहुत असर होता है। मैंने मेरे वालिद को जी, बहुत फ़य्याज़, बहुत जफ़ाकश, मेहनती और ईमानदार पाया है। मैंने अपने उस्ताद को भी इसी तरह का जैसो पाया। वो जो कहते थे उसी पर अमल करते थे या उनकी ज़िंदगी में उसको बरतते थे। तो मैंने महसूस किया कि इंसानी हमदर्दी, उख़्वत, भाईचारा और हुब्बुल वतनी, ये सारी चीज़ें इंसान के किरदारों में होनी चाहिए। और जो मैंने अपने वालिद, अपने उस्ताद, अपने बड़ों की तबीयतों में, उनकी शख्सियतों में देखी है, मैं अफ़साने में भी और अपनी अमली ज़िंदगी में उसे बरतने की कोशिश की। जी। अब सबसे अहम सवाल और आखिरी सवाल है कि सारे ही अफ़साना बयान भाई निगारी आपके खूबसूरत, के जी, सारे ही सवाल आपके बहुत अहम हुए हैं नहीं, असल रेहान में भाई। नहीं, सवाल इस तरीके से तरतीब दिए गए हैं कि ख़यालात, नज़रियात और मुशाहिदात का पता चले। तो उस जी। ताल्लुक से ये 15वां जो सवाल है कि आपके ख़्याल में अफ़साना निगारी का जो फ़न है वो क्या है? और लगे हाथ अफ़सानचा निगारी के ताल्लुक से भी आप अपने ख़यालात बताएँ कि अफ़साना निगारी और अफ़सानचा निगारी का फ़न क्या है? और साथ ही अ, अफ़सानचा निगारी और अफ़साना निगारी का जो मुस्तक़बिल है, वो आप किस तरह देखते हैं उसे? तो इस ताल्लुक से थोड़ी-सी जो है इस ताल्लुक से मैं इसे अहम सवाल कह रहा हूँ। तो इस पे आपका नज़रियात जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक अफ़साने की बात है, देखिए, मैं मैं ये महसूस करता हूँ कि आज का अफ़साना नए क़ारी तक नहीं पहुँच रहा। आज का अफ़साना उसके जी, अफ़साना निगार के दोस्त ही पढ़ रहे हैं, और ये बहुत अफ़सोस की बात है, क्योंकि जब दोस्त दोस्त की किसी काविश को पढ़ता है, देखता है, तो वो बड़ी मोहब्बतों से देखता है। उसमें कोई जराहत नहीं होती, उसमें कोई तनक़ीद नहीं होती। वो किसी मुख्तलिफ़ ज़ाविये निगाह से उस तख़लीक़ या फ़नपारे को देखता नहीं है। इसलिए आप देखिए, आजकल की जो तनक़ीद जैसो किसी फ़नपारे पर लिखी जा रही है, उसमें तनक़ीद कम, तौसीफ़ ज़्यादा होती है, क्योंकि उस अफ़साना निगार का दोस्त ही उस अफ़साने को पढ़ता है और उसकी तनक़ीद लिखता है। होना तो ये चाहिए कि जिस तरह से तरक्की पसंद अफ़साना निगारों ने अपना नक़ात खुद तलाश करके खुद साथ लेकर आए थे, उसी तरह से आज ये होना चाहिए कि हर अफ़साना निगार ने अपने क़ारी को ढूँढ-ढूँढ कर, अपने रीडर को ढूँढ-ढूँढ कर अपने फ़नपारे को, नई बस्ती को ढूँढना चाहिए, नए लोगों को तलाश करना चाहिए और अपने फ़नपारों को उन तक पहुँचाना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आज मोबाइल की दुनिया में हथेली पर आई हुई ये समाजी वसाइल ने अफ़साने को बहुत ज़्यादा फैला दिया है। आप देखिए कि किताबें आज हाथों से छूट गई है और मोबाइल हाथों में आ गया है। तो मैं समझता हूँ नए अफ़साना निगारों ने, इस दौर में लिखने वालों ने मोबाइल का इस्तेमाल बहुत महारत से करना चाहिए और अपने फ़नपारों को नए क़ारी तक, नए रीडर तक पहुँचाने की कोशिश करना चाहिए। नया रीडर, नया क़ारी तभी जुड़ेगा जब आप
उसके मुशाहिदे, उसके माना और उसके मतलब की बात करेंगे, अगर आप 1810 की बात करेंगे या फिर जो है सो तक़सीम हिंद की बात करेंगे, उस वक़्त के दूर दराज के पंजाब के इलाकों की बात करेंगे, या फिर आप जो है सो दिल्ली के नवा नवा में जो गुफ्तगू होती थी वहाँ के जो बात करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आज की ताज़ा दम नई नस्ल आपके अफसानों को कोई आम ज़बान में उर्फ़ आम में जो कहते हैं भाव देगी, वो अटेंशन आपके अफसानों को नहीं देगी। रही बात अफसानचे की, तो मैं दस्तबस्ता तमाम अफसाना निगारों से ये गुज़ारिश करता हूँ, खुदा के वास्ते कोई भी अफसानचा मोबाइल पर टाइप मत करिए, कागज़ पर लिखिए, कागज़ पर लिखिए, उसे पढ़िए, फिर कहीं शाये करने के लिए भेजिए। आप इस गलतफ़हमी में मत रहिए कि 4, 6, 2, 8 लाइन अफसानचा होती है, वो अफसानचा नहीं होती है। जैसे सोने के एक तार को कहीं से भी काटा जाए, तो वो सोना ही होता है, उसका मोल कम नहीं होता। अफसानचा भी अफसाने अफसाने की एक कंसाइज़ सूरत है, एक मुख्तसर सूरत है, क्योंकि आज की भागती-दौड़ती दुनिया में आदमी के पास वक़्त नहीं है, वो अफ़साने को पढ़ नहीं सकता, इसलिए अफ़सानचे को पढ़ता है। अफ़सानचे में भी वही लवाज़िमात पूरे मुकम्मल होने चाहिए, जो अफ़साने में है। देखिए मोतियों का हार सिर्फ़ एक मोती से नहीं होता या उसके एक पेंडेंट से नहीं होता, वो हार मुकम्मल उसके शुरू से आखिर तक उसकी तारीफ़ में होता है। अफ़सानचा भी ऐसी है, और जो अफ़सानचा निगार लिख रहे हैं, अफ़सानचे से मुतासिर होकर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा के वास्ते वो मोबाइल पर अफ़सानचा तहरीर ना करें, कागज़ और कलम का इस्तेमाल करें, फिर अफ़सानचा ग्रुप पर या आपके सोशल अकाउंट पर लगाएँ। आप देखिए उसका असर बहुत जुदा होगा, लोग मुतवज्जा होंगे, उसकी तासीर, उसकी वहदत और जुदा होगी, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। और ऐसे अफ़सानचे जो हाफ़िज़े का हिस्सा होते हैं, मैं समझता हूँ वो जो काम बड़ी-बड़ी नॉवेलें या दास्तानें नहीं करती, वो अफ़सानचा कर सकता है, बशर्त ये है कि उसमें उस तरह की संजीदगी आए, उस तरह का डेकोरम आए, उस तरह का डिस्कोर्स आए, उस तरह का पैटर्न आए, जो आज का क़ारी, जो अफ़सानचे का पैटर्न है, उसकी जो तरकीब है, उसका जो तकाज़ा है, अफ़सानचा वो पूरा करे। वाह, वाह! वाह! बहुत आज एक अफ़सानचे की बहुत ही खूबसूरत तारीफ़ सुनने को मिली कि अफ़सानचा जो है वो सोने का तार होना चाहिए, कि कहीं से भी काटो तो वो सोना ही निकलना चाहिए। तो बहुत खूब, बहुत खूबसूरत और बहुत ही मुशाहिदात, तजुर्बात और वाक़यात से भरपूर आपके जवाबात थे। तो इस उर्दू पॉडकास्ट के लिए आपने वक़्त निकाला। नूरुल अमीन साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये सिलसिला इंशाअल्लाह यूँ ही जारी रहेगा। और जिस किताब का आपने शुरू में ज़िक्र किया, आपके उस्ताद मोहतरम की जो किताब है, उस पर हमारा एक और प्रोग्राम है, बातें किताबों की, जो फ़िलहाल वो रुक गया था, वो सिलसिला वो शुरू करना है। तो आपसे हम एक बार और जो है वो ये लाइव स्ट्रीम करना चाहेंगे, या रिकॉर्डिंग करना चाहेंगे, और उस किताब पर जो है वो हम बात करना चाहेंगे। तो उसके लिए भी आपसे वक़्त रेहान भाई, देने की दरख्वास्त है। अरे आप हुक्म करिए। रेहान भाई, आपके पॉडकास्ट में आना एक खुद एजाज़ की बात है, क्योंकि आपकी शख्सियत हमारा जो है शख्सियत है, इसलिए नहीं कि आप मेरे दोस्त हैं, वाक़ई पूरी उर्दू दुनिया आपको रेहान कौसर के नाम से जानती है। आपके पॉडकास्ट में आना ऐसा ही है रजत शर्मा के शो में आना, जो रिकॉग्नाइज़ हो जाता है, वही आपके शो में आता है। आपकी मोहब्बतें कच्चे धागों में आपके पॉडकास्ट में खींच के लाती है, और कोई भी संजीदा कलमकार आपकी मोहब्बतों से दूर नहीं रह सकता। आपके पॉडकास्ट से, अल्फाज़ हिंद से, आपके जो सोशल मीडिया के जो अफसानचा ग्रुप है या अफसाना ग्रुप है, इससे दूर नहीं रह सकता, क्योंकि मोहब्बतों की बस्ती में आदमी बसना चाहता है, जीना चाहता है। कौन सा दीवाना होगा जो आपकी बस्ती में जीना नहीं चाहेगा, अपनी नामवरी नहीं चाहेगा। आपके जो तनावर दर्स में जो आपने अदब का दरस लगाया है, उसके साए में दो घड़ी बैठकर क्यों ताज़ा दम नहीं होना चाहेगा। आप देखिए, बहुत सारे लोग
अपनी अपनी मसरूफियत में हैं। आप जिस मोहब्बत से पिछले 1 घंटे से 1.5 घंटे से जो गुफ्तगू कर रहे हैं अदब पर, इतने नुदूरत वाले मौजू पर, ऐसी खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले, सवाल पूछने वाले, जानने वाले लोग अब कहाँ रह गए हैं? कौन अदब को इतना वक्त, इतना पैसा, इतनी संजीदगी, इतनी मेहनत जो देता है? बहुत कम लोग, उंगलियों पर गिने चुने जो आपकी तरह के लोग रह गए हैं। मैं समझता हूँ आप अदब का बहुत कीमती सरमाया है। आप जो काम कर रहे हैं, तारीख उसको बहुत सुनहरे लफ्जों में लिखेगी। अगर आज आखिर हाजिर में अगर जो अदब का काम खामोशी से कर रहे हैं, इसमें रेहान कौसर कामटी का नाम सर फहरिस्त है। मैं नहीं कह रहा, किताबें कह रही है, अल्फाज हिंद कह रहा है, सोशल मीडिया कह रहा है, और आप तो देखिए आपने तो कमाल कर दिया इसको, पॉडकास्ट को जो है शामिल करके मुझे आपने याद किया, मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मेरे लिए ये आपका याद करना ये एजाज की बात है, और मुझे बेइंतहा खुशी होती है आपसे ये आपसे बात करते हुए, आपके स्ट्रीमिंग में, पॉडकास्ट में आकर मुझे बेइंतहा खुशी होती है। आपने मुझे बुलाया, आपने याद किया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का बेहद शुक्रिया। आइंदा भी जब भी आप कहेंगे मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो जाऊंगा, जो भी आपका हुक्म है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल अमीन साहब। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने इतने ज़रीन ख्यालात जो है जब मैंने ये पॉडकास्ट अनाउंस किया, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा जो है रिस्पांस मिला, और मुझे उम्मीद है और हम दुआ करते हैं कि ये दस्तावेजी शक्ल की तौर पर जो है ये तमाम जो पॉडकास्ट होने वाले हैं वो जो है वो उसको उस तरीके का ही दर्जा मिले। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा कोशिश ये है कि जो इसमें जो इंटरव्यू का हिस्सा है इसको बाद में किताबी शक्ल दी जाए। तो मैंने अपने जो डीटीपी वाले जो हमारे डीटीपी ऑपरेटर है उनसे मैंने कह दिया है कि जब जब ये इंटरव्यू जो है ब्रॉडकास्ट हो तो आप उन्हें सुनकर जो है वो लिखते जाना है, टाइप करते जाना है। तो इंशाल्लाह ये पॉडकास्ट जो है इसके जो तमाम इंटरव्यूज है वो किताबी शक्ल में भी इंशाल्लाह आएंगी। तो बहरहाल आपने वक्त दिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगले किसी और प्रोग्राम में जो है हम फिर से मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत अल्लाह हाफिज।